Good morning, dear students. How are you? I hope you all are keeping well and enjoying this weather. And I hope that with this weather, with this awesome weather, you all are enjoying your online classes as well, right? Okay, so once again, I am Anurag and I am with you with our online class. I hope you all are like today, you all have already joined and the technical team has already sent you the link. So those who have joined, they all are welcome. Very good morning to all of you. And those who have not joined, inform your friends, inform your whatever your relatives or whatever the person those are connected with us, inform them immediately so that they can also join the class from the beginning. Okay, so once again, welcome you all, and once again, good morning to all of you, those who have already joined. Yes, I am watching, let me see. Okay, again and again, students are writing good morning, good morning. Okay, good morning to all of you. But again and again, we are informing you that your presence in these online classes is very mandatory as per the guidelines by CBSE. So mark your presence in online classes, okay? Because in the end of this session, in your board examination, you are going to get some percentage of your marks, maybe 10 or 5 marks on the basis of your behavior in online classes, as I have already messaged this thing in the groups. So your presence is very mandatory in these online classes. So inform your friends also to join the classes on time so that they can understand the things very well. Okay, so without wasting too much time, without rambling here and there, let's begin our today's class. Okay, as we have seen in our previous class, we have discussed the poem King of Beauty by John Keats. Line by line explanation we are doing, and in Hindi we are doing the explanation. Some of the students are asking me that, sir, why are you not using only English in the classroom? It's very, I think, difficult with some students to understand the things in only English. Because you know that many students in our school, many students in our classroom are also from rural background, they are from villages. So it's very difficult for them to cope up with the class, and that's why we are not using only English in our classroom. Most of the times we are bilingual in our classrooms, we are using Hindi as well as English so that all our students can understand the concept, all our students can understand the topic, the lesson quite well. Okay, so let's begin our today's class with the revision of our previous class. Okay, we are going to revise the poem from the beginning. Those who have not watched the first video or those who are not present in the first class, they can just go to the link given in the description and watch the class before. They have to see the class before the first class that we have already conducted. You must go through that video, go through that class. Afterwards, you can understand whatever we are going to start today. Okay, so let's begin with the revision. As you all know that the poem King of Beauty in our syllabus, in our book Flamingo, is an extract of the long poem Endymion, a poetic romance by John Keats. Okay, so this poem is not a whole poem, it's just only an extract from the long poem Endymion, a poetic romance, and it is written by the poet John Keats. I have already told you a lot about the poet John Keats in our last class. Okay, in which the young shepherd has a vision of moon goddess, and enchanted to her beauty, he seeks her out. So, as we discussed in our previous class, that the young shepherd, whose name was Endymion, the name of the shepherd was Endymion, okay, and he was the son of Atlas. He was a very young and beautiful shepherd. Once he had a vision of moon goddess, okay. So those who have already watched the previous video, those who have already joined the class in our previous class, mention in the comment box the name of this moon goddess. In our previous class, in our last class, I have already told you about the name of the goddess. What was the name of this goddess? So comment in the comment box that what was the name of this moon goddess whose vision this young shepherd had
जिसका भी ये सपना उस यंग शेपर्ड को आया था, इस मून गॉडेस का नाम क्या था, वो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड आई एम कंटिन्यूअसली वॉचिंग योर कमेंट्स, दोस हु आर यस, ओके। सो फटाफट कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताइए इस गॉडेस का नाम क्या था, ओके। तो आई टेल यू, so the young shepherd whose name was Endymion, he has a vision of the moon goddess, okay, and enchanted to her beauty. The moon goddess was very beautiful. Her beauty was quite enamoring, okay. So the young shepherd was enchanted to her beauty and he seeks her out. Means he sets out to seek her. उसे ढूंढने के लिए, उसे तलाशने के लिए, उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। किसे? उस चंद्रमा की देवी को, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। Okay, so the young shepherd fell in love with her. Okay, the young shepherd narrates the beauty of nature. So while he seeks out, यानी कि जब वो जो shepherd था, यानी कि जो वो चरवाहा था, जब उसे ढूंढने के लिए निकला, तो he goes through the mountains, he goes through the streams, ठीक है, under the sea, और मतलब खूबसूरत प्रकृति के नजारों से होते हुए वो गुजरा, and that's why he narrates the beauty of nature. जो भी उस प्रकृति की खूबसूरती को उसने देखा, जिसकी उस प्रकृति की खूबसूरती को उसने एक्सपीरियंस किया, he narrates this beauty of nature in this poem. Okay, so actually this poem is written by John Keats, but in this poem, the Endymion, the shepherd, is narrating the poem to us. Okay, so if somebody asks you that who is the narrator in this poem, the narrator of this poem is the young shepherd Endymion. And if someone asks you that who is the poet of this poem, the poet is John Keats. Okay, it is written by John Keats. Okay, yes, I have got comments from students. Yes, very good students. You all are those who have given the right answers. Very congratulations to all of you. I know that you all are very actively participating, and I request you all those who are live watching this class, they are live connected with us. Just put your replies in the comment box. Just put your replies in the comment box so that it just shows your active presence. It shows that you are very actively connected with us. You are very actively participating in all the activities that is going in our online classes. Okay. So next time, whenever something is asked to you, whenever some question is asked to you, and you are directed to put your answers in the comment box. Reply fast. Give your answers in the comment box. So those who have already answered, yes, Aman has answered, and this Monica has answered. Niharika has also answered. Okay, so some students have already answered. I just tell you that the name of this moon goddess is Cynthia. What was the name of this moon goddess? Cynthia. Okay. Sometimes it is also known. She is also known as Diana. Diana भी उसको कहा जाता है. Cynthia नाम की इस देवी का उसने सपना देखा था. Okay. So let's see what the poet says. The poet says that a beautiful thing never fades away. What the poet says? What John Keats says? John Keats says that a thing of beauty is joy forever. A thing of beauty is joy forever. Its loneliness increases. It will never pass into the thingness. It means it never fades away. Okay? It is a source of continuous joy. It is a source of unending joy. A thing of beauty is a source of unending joy. Its loveliness always increases. It's a continuous joy. It gives us sound sleep, health, quiet breathing, a power of silence. So these are the things that a thing of beauty gives us. Okay? It gives us sound sleep. गहरी नींद देती है, health, क्वाइट ब्रीथिंग, सांसों को आराम देती है, द पावर ऑफ साइलेंस, और एक शांत उपवन, एक शांत बगीचे का निर्माण हमारे लिए करती है. एंड दस मैन इज लिविंग अ फ्लावरी बैंड विद द एयर, एंड दैट इज व्हाई मैन मीन्स मैनकाइंड, यानी कि मानव समाज, मानव समुदाय. Thus man is living a flowery band with the earth. It means on every morrow we are within, we are knitting, we are weaving a bond with the nature. We are knitting a bond with the nature so that we will stay connected with it, so that we can enjoy the beauty of nature, so that we can enjoy the happiness in our life. And we can only enjoy this happiness in our life with the help of nature. If we stay connected with nature, if we are close to nature, only this is the source, only this is the way with which we can enjoy the happiness in our life. A thing of beauty moves away the cover of sadness. The power of sadness, the cover of sadness, which
nature which has already fallen on our spirits, which has already fallen on our hearts, हमारे ऊपर, हमारे मन पर, हमारी भावनाओं पर, हमारी आत्मा पर जो दुखों का पर्दा गिरा हुआ है, जो सैडनेस का पर्दा गिरा हुआ है, a thing of beauty moves away that cover, that वो उस पर्दे को, उस पैर को हमेशा के लिए क्या कर देती है, दूर कर देती है. And why we are sad? We are sad because of inhuman dirt. We are sad because of lack of human values. We are sad because of our unhealthy days. We are sad because of our darkened ways. These are the things that make us sad in our life. And who can overcome us from this sadness? Who can help us to overcome this sadness? Only the thing of beauty is the thing. Only the beautiful things of this nature are the things that help us to overcome this sadness. So, up to this part we had read in our last class. हमारी पिछली क्लास में हमने यहां तक की पोएम को डिस्कस किया था, पढ़ा था यहां तक की पोएम के बारे में. एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने हमारी पिछली जो पोएम थी वो मैंने एंड की थी कि मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे ये बताएंगे कि इस पार्ट में यहां तक कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज किया गया. तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिए, बहुत सारे बच्चों के जवाब मेरे पास में व्हाट्सएप पर आए, कुछ बच्चों ने कमेंट्स में भी जवाब दिए. एंड वेरी सून आई विल आल्सो टेल यू अबाउट द फिगर ऑफ स्पीचेस यूज्ड इन दिस पोएम बाय जॉन कीट्स. उनके ऊपर हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास. आज की क्लास को शुरू करते हैं. जो भी हमारे पोएम का बचा हुआ हिस्सा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, पोएम का जो एक ग्राफिक्स है, इमेज जो है, तो आई होप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. तो आप पोएम को वहां से भी देख सकते हैं जिनके पास में बुक्स नहीं है. और जिनके पास बुक्स नहीं है, अगेन आई एम सजेस्टिंग, अगेन आई एम एडवाइजिंग दैट प्लीज गो टू मार्केट एंड परचेज योर बुक्स. ओके, एज सून एज पॉसिबल परचेज योर बुक्स. ओके, तो चलिए आज की पोएम को हम लोग फटाफट शुरू करते हैं. स्क्रीन पर आप लोगों को पोएम जो है वो नजर आ रही होगी. ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं. और बढ़ते हैं हम अपनी पोएम के ऊपर आगे. ठीक है, देखिए, तो हमने लास्ट पार्ट जो था, हमारी जो लास्ट क्लास थी, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यानी कि जो भी हमारा डिप्रेशन है, जो भी हमारा दुख है, उस दुख से क्या करती हैं? उस दुख से हम लोगों को बाहर निकालने का काम कौन करती है? बाहर निकालने का काम हम, ये जो खूबसूरत चीजें हैं, ये जो प्रकृति की सुंदर चीजें हैं, ये करती है. ठीक है. आज की क्लास में हम इस पोएम को इसके आगे बढ़ाते हैं, इसके आगे इस पर डिस्कशन करते हैं. ठीक है. जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे वो साथ साथ में आप लोगों को समझाते रहेंगे, साथ साथ में आप लोगों को करवाते रहेंगे. चलिए देखिए, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग द शेडी boon for a simple sheep. Now what the poet is saying to you? Poet is saying to us, poet is giving us some examples of the beautiful things of nature. It means कवि अब हम लोगों को यहाँ पर प्रकृति की कुछ सुंदर चीजों के, प्रकृति की कुछ खूबसूरत चीजों के एग्जाम्पल्स दे रहा है. क्यों वो एग्जाम्पल्स दे रहा है? वो इसलिए एग्जाम्पल्स दे रहा है, वो बताना चाहता है कि देखो ये चीजें हमें मैसेज देती हैं, ये चीजें हम लोगों को एक मैसेज करती हैं कि देखो, जब हम लोग इस प्रकृति में रहकर खुश रह सकते हैं, हम लोग जब लोगों को खुशी दे सकते हैं, तो आप लोग क्यों दुखी होते हो? इस प्रकृति में रहते हुए आप इस प्रकृति को एंजॉय करो, इस प्रकृति की खूबसूरती को एंजॉय करो एंड बी हैप्पी. Forget your sadness, forget your unhappiness, forget your gloom. अपने दुख को भूल जाओ, तकलीफों को भूल जाओ, अपने सफरिंग्स को भूल जाओ. Just become happy. Why? How can you become happy? Because happiness is inside. Okay? जो खुशी है वो हमारे अंदर है, बस हमें अपने उस अंदर की खुशी को क्या करना, बाहर निकालना है. And the thing of beauty, the beautiful things of the nature can help us to move these things out, move this happiness out. इस happiness को बाहर लाने का काम कौन करती है? ये खूबसूरत चीजें करती है. तो क्या कहा उसने? देखो कवि क्या कहता है? कवि कहता है सच द सन. उसने एग्जाम्पल दिए हैं. ये क्वेश्चन पूछे किसी भी आप लोगों से, ठीक है, कि लिस्ट द ब्यूटीफुल थिंग्स या लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम. उन चीजों के नाम लिखो जिनको इस कविता में मेंशन किया गया है. तो उसमें किसका यूज किया? उसने यूज किया सन का.
किसका यूज किया? मून का यूज किया। उसने किसका यूज किया? ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि पेड़ चाहे पुराना हो, पेड़ चाहे नया हो, ये पेड़ क्या करते हैं? ये स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर सिंपल शीप। स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, स्प्राउटिंग का मतलब क्या हुआ? स्प्राउटिंग का मतलब हुआ प्रोड्यूसिंग, ठीक है। स्प्राउटिंग का मतलब क्या हुआ? स्प्राउटिंग का मतलब हुआ प्रोड्यूसिंग, ठीक है। वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं अपनी पत्तियों से, अपनी शाखाओं से। पेड़ जो क्या करते हैं? जानवरों के लिए, यानी कि इस धरती के जो जानवर हैं, इस धरती के जो लोग हैं, इन धरती के लोगों के लिए क्या करते हैं? एक शेडी बून का निर्माण करते हैं। एक शेडी बून, बून आप सब जानते हैं किसको कहते हैं? आशीर्वाद को कहा जाता है। तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ एक बड़ा ही छायादार आशीर्वाद देते हैं, एक छायादार वरदान देते हैं लोगों को, ठीक है। एंड सच आर डैफोडिल्स, ठीक है। देखो और क्या नाम बताया उसने? ट्रीज के बाद में और कौन सी चीजें हैं? उसने कहा सच आर डैफोडिल्स। अब डैफोडिल्स क्या होते हैं? जानते होंगे आप लोग, बहुत बार देखा भी होगा आप लोगों ने। नरगिस के फूल, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल होते हैं। नरगिस के फूलों को डैफोडिल्स कहा जाता है। नरगिस के फूल, आई होप आपको इमेज पर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। नरगिस के फूल होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं और बड़े ऐसे झुंड में, झुंड के रूप में खिले होते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही लुभावने लगते हैं। तो कहता है सच आर डैफोडिल्स, यानी कि वो नरगिस के प्यारे प्यारे खूबसूरत से फूल विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो हरियाली और वो हरा भरा माहौल जिसमें कि फूल खिले होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? प्रकृति की चीजें हैं। एंड क्लियर रिल्स, और क्या नाम बताया उसने? एंड क्लियर रिल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिल्स? रिल्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटे छोटे जो झरने होते हैं, छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, ठीक है, जो बड़ी नदियों से ऊपर निकलती हैं या पहाड़ों के बीच में से पतली पतली सी धाराएं से निकलती रहती हैं, उनको क्या कहा जाता है? रिल्स कहा जाता है। वो ये आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी नदियां, वो कहता है एंड क्लियर रिल्स, यानी कि साफ पानी की वो छोटी छोटी नदियां, वो छोटे छोटे से झरने, दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ड वे, जो क्या करती हैं? कूलिंग कवर्ड। समझना क्या है कूलिंग कवर्ड? कूलिंग और कवर्ड, कवर्ड का मतलब क्या होता है? कवर किया हुआ, ढका हुआ। और कोई चीज जो ढकी हुई होगी वो क्या करेगी? वो छाया देगी। तो यहां पर कूलिंग कवर्ड का मतलब भी क्या है? कूलिंग कवर्ड का भी मतलब क्या होता है? शेडी प्लेस। क्या कहते हैं? शेडी प्लेस, यानी कि वो कहता है, यानी कि कवि ही कहता है, जॉन कीट्स से कहते हैं कि प्रकृति में सूरज, प्रकृति में चंद्रमा, प्रकृति के हरे भरे बूढ़े और नए पेड़, प्रकृति में खिले हुए नरगिस के फूल जो कि हरे भरे जंगल में खिले हुए बड़े खूबसूरत लगते हैं, प्रकृति की ये छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे पानी के झरने जो कि क्या करते हैं? जो कि एक बड़े ही छायादार और ठंडे स्थान का निर्माण करते हैं, ठंडी जगह का निर्माण करते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। किस मौसम में? गर्मी के मौसम में, ठीक है। जिन लोगों ने भी कभी नहर के अंदर इस चीज को एंजॉय किया है, ठीक है, आपके खेत के पास से नहर बह रही है, देखे होंगे उसके पास में पेड़ पौधे भी लगे होते हैं, घास भी हुई होती है, और आप गर्मी के मौसम में खेत गए हुए हैं, और फिर आप उस गर्मी से निकलकर उस खेत में थोड़ी देर काम करने के बाद आपको सुकून करना है, आपको थोड़ा आराम करना है, ठीक है, तो कहां आते हैं? नहर के पास आते हैं। और वो जो बहता हुआ पानी, उस बहते हुए पानी के पास जब हम बैठते हैं तो बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ी ठंडक मिलती है, बड़ा आराम मिलता है। तो बस वही कहता है कि प्रकृति की ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो छोटे छोटे झरने हैं, ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये गर्मी के तपते मौसम में क्या करती हैं? गर्मी के तपते मौसम में हमारे लिए एक शांत, एक छायादार, एक प्यारे से सुकून भरी जगह का निर्माण करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लू। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जंगल के बीच में कहीं पर एक थिक, घनी सी जगह है। ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब होता है थिक, घनी, ठीक है। तो जंगल के बीच में कहीं एक घनी सी जगह, और किस वजह से वो थिक है, किस वजह से वो ब्रेक है? देखो क्या है? रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। वहां पर जंगली गुलाब के फूल जिनमें से मस्क की सी खुशबू आती है। अच्छा, मस्क क्या चीज होती है? देखो आपने सुना होगा, आपने हिरण का नाम सुना होगा, ठीक है। कौन से हिरण का? वो रामायण में तो हिरणी था,
ठीक है। सीता जो है वो सोने के हिरण को देख के बड़ी लालायित होती है, राम को कहती है कि भी जाइए मुझे वो हिरण आप लाकर दीजिए। तो आपने कई बार एक नाम सुना होगा कस्तूरी मृग, ठीक है, ये नाम आपने कई बार सुना होगा कस्तूरी मृग। ऐसा कहते हैं कि कस्तूरी मृग जो होता है उसकी नाभि में एक कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की खुशबू जो है वो बहुत ही दूर दूर तक फैल जाती है। और ये जो मृग होता है, ये जो हिरण होता है, ये हिरण उस खुशबू से इतना आकर्षित होता है कि वो इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, खुद ही दौड़ता है कि कहां है, कहां है, उसे पता नहीं लगता कि ये जो कस्तूरी है उसकी खुद की नाभि में होती है। ऐसी कहानी भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि द थिंग इज बेस्ड ऑन एनी फैक्ट, ठीक है, इस चीज का फैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि इस मृग के नाभि में जो कस्तूरी होती है उसकी खुशबू की वजह से ये हिरण क्या करता है, यहाँ वहां दूर दूर तक दौड़ता है और फिर दौड़ते दौड़ते कहते हैं कि अपने ही प्राण त्याग देता है, अपने ही जो है वो मौत मर जाता है, इसे कस्तूरी नहीं मिल पाती क्योंकि, ठीक है, कस्तूरी तो इसके खुद के नाभि में होती है। इसीलिए हिंदी में एक शब्द बना है, कभी आपने सुना होगा, मृग तृष्णा। बहुत कॉमन वर्ड है मृग तृष्णा, ठीक है। मृग तृष्णा का क्या मतलब है? तृष्णा का मतलब होता है इच्छा और मृग मतलब हिरण की तरह। तो हिरण की तरह इच्छा, और हिरण को किसकी इच्छा होती है? कस्तूरी की। क्या तो हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि मस्क का मतलब कस्तूरी होता है एंड इट्स अ वेरी, मतलब ये इसमें काफी ऑर्डर होती है, ठीक है, इसकी स्मेल काफी तेज होती है, काफी तेज इसका जो मतलब खुशबू है वो होती है। तो यहां देखिए वो क्या कहता है, जॉन कीट्स हमसे कहता है कि जंगल के बीच में एक घनी सी जगह पर क्या उगे हुए हैं? जंगली गुलाब के फूल उगे हुए हैं, जंगली गुलाब के फूल उगे हुए हैं, आती है खुशबू। जैसे अगर कोई कभी कश्मीर गया है तो कश्मीर में अगर आप जिस समय ये क्या बोलते हैं अपने केसर की खेती हुई होती है, उस समय अगर आप वहां से गुजरे, अगर आप कश्मीर गए हैं उस समय में, तो आपको खेतों से केसर की स्मेल आएगी, बहुत ही शानदार। किसी हलवाई की दुकान पर जैसे हलवा बनता है तो हलवे की खुशबू आती है, वैसी खुशबू आती है, बड़ी शानदार, बड़ी प्यारी, बहुत मीठी मीठी सी खुशबू आती रहती है। तो बिल्कुल वैसे ही वो कहता है कि जंगल के बीचों बीच वो गहरा सा स्थान, वो गहरी सी जगह जहां पर क्या उगे हुए हैं? मस्क रोज, यानी कि जंगली गुलाब के फूल उगे हैं, जिनकी खुशबू जो है, जिनकी कस्तूरी खुशबू जो है वो पूरे जंगल में फैली हुई है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसका जिक्र इस पोएम में कवि ने किया है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, तो कौन कौन है? सन है, मून है, ठीक है, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ठीक है, और क्या जिक्र किया उसने, ठीक है, किसका नाम लिया था? और उसने किया रिल्स, ठीक है, क्लियर रिल्स, ठीक है, और किसका नाम लिया उसने? और उसने लिया डैफोडिल्स, ठीक है, और किसका नाम लिया? उसने नाम लिया मस्क रोज। यानी ये वो चीजें हैं जिनका यूज जो है वो पोएम के अंदर किया गया है, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स यूज बाय द पोएट, ठीक है, एंड दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी यूज बाय द पोएट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, तो इन इतनी चीजों के नाम आपको लिखने होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैडनेस ऑफ मैनकाइंड। मानव समाज या मानव समुदाय के दुख के लिए या उसकी अनहैप्पीनेस के लिए कौन सी चीजें जो है वो उत्तरदायी है, किन चीजों का जिक्र जो है वो कवि ने इसमें किया है। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें थी, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या था? इन ह्यूमन डर्थ, क्या पढ़ा था? इन ह्यूमन डर्थ, ठीक है, और क्या पढ़ा था? अनहेल्दी वेज, और क्या पढ़ा था? डार्कन्ड वेज, ठीक है, और इनह्यूमन डर्थ, अनहेल्दी वेज, डार्कन्ड वेज, ठीक है, अनहेल्दी डेज था ये, अनहेल्दी डेज, ठीक है, डार्कन्ड वेज, ठीक है, या
डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, अभी पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मनुष्य दुखी है, तो वो तो ये है। और ये पूछा जाए कि कौन कौन सी ब्यूटीफुल चीजें या कौन कौन सी चीजों को कवि ने पोएम में यूज किया है, तो वो ये है ब्यूटीफुल चीजें। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्टरोज ब्लूम्स, यानी कि जंगल के बीचों बीच वो घनी सी जगह जहां पर जंगली गुलाब के खूबसूरत फूल उगे हुए हैं और उनकी कस्तूरी खुशबू जो है वो पूरे जंगल में फैली हुई है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डून्स, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डून्स, और यही जो है वो हमारे पूर्वजों का भी क्या है, सौभाग्य है, यानी कि उनके लिए भी शान की बात है। इसमें जो वर्ड आया है, ठीक है, ग्रैंडर वर्ड आया है, इसको ग्रैंडर भी बोलते हैं, ग्रैंडर भी कहा जाता है। एंड द वर्ड मीन स्प्लेंडर, क्या मतलब है इसका, स्प्लेंडर। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स जो थे, ठीक है, कहां, देखो ये पूरी लाइन पढ़ते हैं हम लोग। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। द वर्ड माइटी डेड का मतलब है एंसेस्टर्स। ठीक है, द वर्ड माइटी डेड का मतलब क्या है, एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो इस धरती पर अब नहीं है, तो जा चुके हैं इस धरती से, हम लोग कल्पना करके खुश हो सकते हैं कि देखो हमारे पूर्वजों ने भी प्रकृति की इस स्प्लेंडर को क्या किया था, एंजॉय किया था। प्रकृति के इस वैभव को, प्रकृति के इस शान और शौकत को हमारे पूर्वज भी क्या करके गए हैं, एंजॉय करके गए हैं। हमारे पूर्वज ने भी इसका आनंद उठाया था। ये चीजें या ये बात की कल्पना करके भी हम क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि देखो यार नेचर की चीजों में कितनी खूबसूरती है कि हमारे पूर्वज भी इसका आनंद उठा कर गए, हम भी इसका आनंद उठा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति का आनंद उठाएंगी। सो क्या करना चाहिए, वी ऑल शुड सेव दिस नेचर, we all should be very helpful with this nature, we all should be very kind to this nature। हमें इस नेचर को सुरक्षित रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति की इस खूबसूरती का मजा ले सके। क्या कहता है वो, एंड वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। वो सारी कहानियां, वो प्यारी प्यारी प्रकृति की कहानियां जो हमने कभी पढ़ी है या हमने सुनी है, या तो हमने वो कहानियां अपने पूर्वजों से, दादी नानी से सुनी है, या हमने वो कहानियां प्रकृति से जुड़ी हुई कहानियां कभी पढ़ी है। वो कौन सी कहानियां हैं, वो कहानियां हैं हवा से बातें करते हुए उड़ने वाले घोड़ों की। ठीक है, वो कहानियां हैं चांद के नीचे धरती पर आकर खाना खाने की, चंदा को मामा कहने की, पत्थरों की बातें करने की, ऐसी जो कुछ कहानियां हैं आपने जो प्रकृति की सुनी है, खूबसूरत खूबसूरत सी कहानियां। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, क्या है ये कहानियां, ये कहानियां हैं एंड एंडलेस फाउंटेन। एंडलेस फाउंटेन का मतलब क्या हुआ, एंडलेस फाउंटेन का मतलब हुआ जो कभी खत्म नहीं हुआ, एक ऐसा झरना, यानी कि प्रकृति की जो ब्यूटी है ना, नेचर की जो ब्यूटी है, ये क्या है, ये एक ऐसा झरना है जो लगातार हमारे ऊपर बह रहा है, लगातार हमारे लिए बहाया जा रहा है। कौन बहा रहा है, प्रकृति बहा रही है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल का मतलब हुआ अमृत, अमृत वाला, यानी कि इमॉर्टल ड्रिंक क्या हो गई, एक ऐसी ड्रिंक जिसको पीकर आप इमॉर्टल हो जाओ, जिसको पीकर आप हमेशा के लिए अमर हो जाओ, तो वो क्या होती है, अमृत होता है। ठीक है, तो ये जो प्रकृति की खूबसूरत चीजें हैं, यही असली अमृत है, यही वो अमृत का झरना है, पावरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ब्रिंक, ठीक है, ब्रिंक का मतलब क्या होता है, ब्रिंक का मतलब वैसे क्या होता है, दरवाजा होता है, लेकिन यहां ब्रिंक का मतलब एक छोटी दरार है। ठीक है, ब्रिंक का मतलब क्या होता है, एक छोटी दरार। ठीक है, क्रैक जिसको बोल सकते हैं, लेकिन क्रैक बोलना सही नहीं होगा, क्रैक थोड़ा अलग वर्ड है। ब्रिंक का मतलब एक छोटी दरार। तो कहता है कि ये जो सुंदर चीजें, ये जो नेचर की खूबसूरत चीजें, ये क्या है, ये एक अमृत का झरना है, एक ऐसा अमृत का झरना है जो लगातार एक दरार से क्या होता जा रहा है, बहता जा रहा है और हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है। तो नेचर की इस खूबसूरती को हमें क्या करना है,
एंजॉय करना है। नेचर की इस खूबसूरती को हम लोगों को क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है। कब एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जब हम नेचर के नजदीक आएंगे, जब हम नेचर को समझेंगे, नेचर को समझने का मौका हम लोगों को मिलेगा, नेचर को मौका देंगे कि वो हम लोगों के पास आए, हम लोगों की सैडनेस को दूर करे। तो इस तरीके से इस पोएम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जैसा इसका टाइटल है, इस पोएम के टाइटल की ही तरह जॉन कीट्स ने प्रकृति की खूबसूरती को हमें समझाने की कोशिश की है। तो ये थी हमारी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आज की क्लास में हम केवल पैराफ्रेज एक्सप्लेनेशन ही करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी हम लोगों की, उस नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो कुछ कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ एक उन पर डिस्कशन करेंगे, एक क्वेश्चन आंसर का रिवीजन टेस्ट भी करेंगे, और जो इसकी फिगर ऑफ स्पीचेस, उस फिगर ऑफ स्पीचेस पर भी बात करेंगे। आज की क्लास में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आज की क्लास में करेंगे तो क्लास कम भी हो जाएगी और फिर आगे की आपकी क्लास के साथ क्लैश भी होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं आराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में सभी ज्वाइन कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स पे और इसकी फिगर ऑफ स्पीचेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चैनल को एक तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू कि बहुत ही जल्दी अब जो केवल सब्सक्राइब व्यूअर्स होंगे या जो केवल हमारे स्टूडेंट्स होंगे सब्सक्राइब, उन्हीं को ही हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। तो इसलिए आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। कोई इसमें आलतू फालतू चीज आपको नहीं मिलती है, सिर्फ आपके काम की जो चीजें हैं वही आप लोगों को मिलेंगी। तो कोई पैसा नहीं लगता है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार कुछ नया सीखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ ही, ठीक है। तब तक बाय बाय।